नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये वाला जो शो है हम दिल्ली से आपके लिए लाइव लेके आ रहे हैं आईवीपीए की कॉन्फ्रेंस से। और मेरे साथ यहाँ पर सुधाकर देसाई हैं जो प्रेसिडेंट है आईवीपीए एंड ऑफ कोर्स इमामी के चेयरपर्सन भी हैं। सुधाकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोर्थ राउंड ऑफ आईवीपीए एंड हायर हाइज यहाँ पर हैं। काफी सारी चर्चा हमने यहाँ पर खाने के तेलों के अक्रॉस होते हुए देखी है। नॉट जस्ट दैट बट बायोफ्यूल्स और इंटरनेशनल पॉलिसीज, टैरिफ्स, इंडियन पॉलिसीज, काफी कुछ चर्चा हुई है पिछले 2 दिनों में। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंस? Conference was fabulous. We are in the midst of a very successful, conference. It is, like you said, IVPA 4.0, the fourth consecutive conference. I would say confluence of all the experts, both from India and abroad. And the title of the conference is Navigating Through Tectonic Global Shifts. That itself was so topical and thought-provoking. I see that most of the people try to center around their expertise, comments around these. A lot of takeaway from all of this, from the major other countries' experiences, or the subjects that they've brought us to the table. The idea now is to bring that down to a logical conclusion for its imperative implications for India and also all the stakeholders, including farmers, consumers, industry, and also the government. जी सुधाकर, काफी सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं, लेकिन एक चिंता सभी को यहाँ पर लगी है, वो है ईल्ड्स को लेकर और जो ये आत्मनिर्भरता का कॉन्वर्सेशन है उसको लेकर। ईल्ड्स कैसे देखते हैं आप, और जो ये सेल्फ सफिशिएंसी की बात सभी लोग बार बार कर रहे हैं, क्या ये एज ऑफ नाउ सिर्फ बातचीत है? ऑन ग्राउंड इसे एक्चुअल होता हुआ क्या कभी भी देखेंगे हम? I have a positive perspective on that. I don't want to continue to say the yields have been stagnant. Okay. I would say positively that being a big importer of this size of 16 million tons itself is a responsibility and a power by itself. In fact, if you see last 4 years, imports have been stagnant to lower. So which is happening because a few of the crops like rapeseed and the soybeans and cotton, for example, have been growing in India, the domestic crop. These are non-import substitutable oils. So going ahead in terms of yields, another point is that our acreage is very big. The base is very big. So whenever we do any marginal increase of the yield, then it creates a ripple effect. It's important not only for Indian self-sufficiency, but also the global market. Global markets are looking at how less can India take, right? So we made a lot of work as IVPA, both on the self-sufficiency. After the last IVPA round table, we had worked with the Ministry of Agriculture actually. That's where we tried to say what all should be included in the National Oilseeds Mission. Though our ask was nothing double than this, like 30,000 crores outlay, inclusive of many other factors. But I think government has taken up the first initial low-hanging fruit, which is improvisation of hybrid seeds. Second, I think in case this is not possible, I think if the subject to the technical committee approval, in case we are able to do the GMO with caution and care, that is another aspect that should be looked into, because the increase of yield not only a national priority, but also something that makes the farmer income double for a lot quicker in oil seeds. And basically we are sufficient, self-sufficient in most crops, only the barring oil seeds and pulses. एब्सोल्युटली, जी हाँ। एक और चीज जो यहाँ पर संजीव चोपड़ा जी ने कही, जो यहाँ पर इवेंट पे थे, कि अगले हफ्ते से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ पर सभी कंपनीज को, और ये एसोसिएशन से बातचीत करके हुआ है कि सभी कंपनीज को अपना सारा डेटा मैंडेटरी बताना होगा, चाहे वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, प्राइसेस हैं, पूरा का पूरा कंप्लायंस यहाँ पर आ जाएगा। सरकार के पास वैसे ही काफी सारा डेटा है, अब आप पूरा का पूरा डेटा सरकार को यहाँ पर देंगे। एज अ कंपनी, एज एन एसोसिएशन, आप इसे कैसे देखते हैं? See, we would like to work seamlessly with the government. That's number one. The government priority has been that the data is very confusing in this industry. That's what they say. उन्होंने कहा जो एसोसिएशन से डेटा आता है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सारी कंपनीज का सारा डेटा चाहिए। You see, if the data is available, it will be a perfect market. It is not a perfect market. So there is always a data gaps. So we also said that if the data can be collected, we gave a lot of suggestions about how to make the WOPA rules and regulations practical. There are two things now. All the organized sector players obviously will be, comply fully. So all the data is available. It's only the unorganized sector which is very large, that there are thousands of mills and
operating processes. So as they of now, also should be- organized and unorganized की क्या category है percentage wise? I think, I don't know, in terms of number, in terms of an organized sector, it may be 40% or, whatever. But in terms of number, it will be like 10 times bigger because they're all small units who are producing. But never mind, I think there is absolutely no problem to give out to have this data on the table for a constructive policy decision. So that leaves everything, the purchase data is available with the government of India through the customs on real-time basis. There is some anomaly between what the price of loose oils ex factory and the price of oil in a particular retail outlet where the survey is done. So there is some time lag. If the time lag is understood over a period of time, that it is about 20 days or 21 days, because the supply chain through, let's say, 2 million outlets in India is not under the control of a manufacturer. So I look at it like data is good to have, will get fine-tuned over a period of time, and if it helps the common objectives of both the industry and the farmers and the consumers, it is good enough. And another thing that we've been working about is that the duty changes have to be more calibrated, more like predictable, more like balanced. We should avoid big swings like 10-20%. We have said that we have to define what the MSPs that we want, what is the MRP that we would like to have, and given the global market, what are the kind of duties. So even if it is a quick response of 5% or 3%, if we keep changing, then you will not be shocked and surprised about the impacts. आपने कहा अच्छी चीज है, सरकार सारा का सारा आपसे डेटा यहाँ पर मांग रही है, बट एक कंपनी के लिहाज से आप कहेंगे ये ज्यादा पेपर वर्क है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है? We'll do it for the right cause. Let's see how it goes. So there's no problem. Yeah, because we give the data to FSSI, to the customs anyway. It is there. So wherever earlier there used to be Vanaspati Directorate which collects this data. So there's a lot of GST data that the companies have about their purchases and sales. It's not very tough, but it's cumbersome. But it will get fine-tuned over a period of time. एक और चिंता जो जताई गई वो ये थी कि सभी फूड कमोडिटीज में हमने इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देखी है। सिर्फ खाने के तेलों में पिछले साल में 20 से 30% की इन्फ्लेशन अभी भी है। आपको लगता है कि यहाँ से अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, शादियां आएंगी, डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट्स फिर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं? Last year to now, till recently, till May, barring the let's say the duties got affected, the lower duties got affected in the month of June. But if you compare with the last year data, the last year the duties have gone up by exactly the 20%. So whichever month you compare for the edible oil prices, you will find that somewhere 17 to 18% the prices are higher. But if you start comparing in the next 3 months, I'm pretty sure it will be much lower than last year because the duties have got corrected. And currently the market's also in a stabilized, consolidated. We got a few experts talking about markets right now, but market look at small range, narrow range, typically. If you really see, the real inflation in the current month is coming in mustard oil, actually, so, which is not imported, which is domestic. मस्टर्ड की बात तो हम करने ही वाले हैं ब्रेक के बाद, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि यहाँ से अगर एक सेंस लेनी हो डिमांड की अगस्त टू अंटिल दिवाली, अक्टूबर नवंबर तक, तो किस तरह की डिमांड, किस तरह की इंपोर्ट्स हम यहाँ देख रहे हैं और किस तरह के प्राइसेस बन सकते हैं? I want to go back to your first question of data. If you compare the last 8 months data, the imports look like balanced. There's no change from the previous year. But if you see the data of last 6 months, January to now, it does appear that because of high prime prices, because of the threat of zero duty imports from Nepal, because of the inverted structure of the market wherein the forwards were cheaper, there was no incentive for anybody to carry stocks. So if you see that, in that sense, there was a 7 to 8% drop in imports. Consumption is part of the drop. Maybe it is dropped by 5-6% because of high prices. But now that the prices have come down after the duty increase in the next 6 months, we already see that in the month of July, the imports are back to normal, like 1.4 million tons, which is what India needs. So in the next 6 months, compared to the previous 6 months, with the festival demand, preponed festival demand, I think the consumption will be definitely better than the last 6 months. So we will average somewhere around, even on the annual basis, if you break even or if you go down by 5-6% as per the call given by the Honorable Prime Minister,
So then it is a good cost to have. मिस्टर देसाई, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. एज ऑलवेज प्लेजर आईवीपी पे यहाँ पर जुड़ने के लिए. और ऑफ कोर्स काफी सारी बातचीत यहाँ पर हुई है जिसका एक समराइजेशन यहाँ पर मिस्टर देसाई ने किया है. वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के भी लिए रुकेंगे. और जैसे सुधाकर जी ने कहा कि सरसों ऑफ कोर्स एक चीज है यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक है प्राइसेस, लेकिन उसके बाद भी बढ़ते हुए नजर आए हैं. क्या कारण है, क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे विजय डाटा से, विजय सॉल्वेक्स के इस ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका. और हम पूरे के पूरे खाने के तेलों के पैक की बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन बात अब यहाँ पर सरसों की करेंगे. हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा है. विजय जी, इस साल का शायद हीरो ओवरऑल अक्रॉस यहाँ पर सरसों है. एक तो ये घरेलू उत्पादन है और उसके बावजूद भी जिस तरह की क्रशिंग है, जिस तरह की डिमांड है, भाव सभी तेलों से ऊपर हैं. कैसे देखते हैं आप ये फंडामेंटल्स? देखिए, 3 रीजंस हैं. पहला रीजन तो है लोगों की आमदनी बढ़ रही है, हालांकि वो तो सभी तेलों के लिए है. दूसरा ये हेल्थ अवेयरनेस. डॉक्टर्स कहते हैं कि कच्ची घानी तेल खाइए, तो लोग बाग अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो लगता ये है जैसे देसी घी की तरह से हो गया है. तो इस वजह से और हर बड़ी कंपनी कच्ची घानी सरसों तेल पैक कर रही है. हर कंपनी हर साल 5-10% सेल्स टारगेट बढ़ा देती है. तो कच्ची घानी की डिमांड एकदम बढ़ गई है और इस वजह से ही ऐसे लगता है जैसे शॉर्टेज में आ जाएगी, और आ ही गई है. करीब 20% दाम नीचे भाव से बढ़ गए. 20% दाम यहाँ पर बढ़े हैं. और क्या शॉर्टेज एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर आ रही है, या फिर आपको लगता है कि ये एक कैलकुलेशन है जो इंडस्ट्री कर रही है? देखिए, जो 20% दाम बढ़े हैं इसकी वजह से मुझे लगता है कुछ न कुछ कॉस्ट कटिंग मतलब यूजेज कम होना चाहिए. लेकिन इसके बाद भी देखने की बात ये होगी, अभी शायद कल भी सेक्रेटरी साहब बोल के गए, फूड सेक्रेटरी, कि हम नाफेड से कहेंगे कि जल्दी इसको रिलीज कर दें. तो देखना ये होगा कि नाफेड और गवर्नमेंट एजेंसी कितनी तेजी से इसको रिलीज करते हैं. यदि जल्दी कर दे, बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं, तो उस वजह से भी गवर्नमेंट शायद चिंतित रहेगी, क्योंकि सब ज्यादा फूड न्यूट्रिशन बास्केट में तेलों में ही नजर आ रहा है, वो स्पेशली मस्टर्ड ऑयल में नजर आ रहा है. गवर्नमेंट फोकस भी है. तो लगता यही है कि अभी देखना होगा नाफेड और गवर्नमेंट एजेंसी कितनी तेज बेचती है. सर, तो उनके हाथ में अब ये भाव यहाँ से कहाँ जाएंगे. लेकिन जिस तरह की फसल है, जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, वो नंबर्स किस तरह के हैं? देखिए, फसल में कोई कमी नहीं थी. वास्तव में कच्ची घानी तेल की डिमांड बढ़ गई है. उस वजह से नजर आ रहा है कि लोगों की शायद फसल कम थी, फसल पूरी है. और इंडिया में सभी पार्ट्स में कच्ची घानी और पक्की घानी तेल भी खाया जा रहा है, और साउथ इंडिया में तो सरसों डायरेक्ट भी खाई जाती है. ये वजह से तो आपको लगता है जिस तरह से एमएसपी यहाँ पर बढ़ाया गया है, आगे ये फसल यहाँ पर किसान और उगाएंगे? बिकॉज ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा है. निश्चित रूप से इस साल एरिया बढ़ने ही वाला है. देखना होगा अभी आगे 2 महीने बाद कैसा एरिया बढ़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है 10-15% एरिया बढ़ना चाहिए. यहाँ से आगे जिस तरह का डिमांड इंक्रीज हम बनता हुआ देख रहे हैं, हम पूरे ओवरऑल खाने के तेलों की बात करते हैं कि कैसे डिमांड ग्रोथ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है. क्या सरसों उस चार्ट को लीड करेगा? आपको लगता है यहाँ मांग बेहतर बढ़ेगी? ऑब्वियसली सरसों तेल एक्चुअली क्या है कि एक तो डोमेस्टिक ऑयल है, और लोगों में अब अवेयरनेस है कच्ची घानी तेल खाने के बाद. डॉक्टर्स कुछ भी कहने लगे हैं कि देसी घी के बाद मोस्ट प्रेफर्ड ऑयल कच्ची घानी ऑयल ही होता है. तो इस वजह से भी है. बाकी जो तेलों की रिक्वायरमेंट है वो तो इम्पोर्टेड ऑयल से पूरी हो ही रही है. तो आपको ये बाजार अब यहाँ पर कहाँ लगता हुआ जाता है? एक और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बाजार कैसा है? देखिए, इंडिया में जो टोटल मस्टर्ड पैदा होती है उसका करीब 20-25% अनऑर्गेनाइज्ड है. जो इंडिया में 50,000 से 1 लाख के बीच में हर विलेज में छोटे छोटे गलियों में एक्सपेलर्स लगे हुए हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है. वो कभी कैलकुलेशन में आता भी नहीं है. तो अगर 110-15 लाख टन की फसल माने तो करीब 25-30-35 लाख टन सरसों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रश हो जाती है, जो काउंट नहीं होती है. कच्ची घानी और पक्की घानी के लिए 80-85 लाख टन सरसों बचती है, और वो इस साल लगता है शॉर्टेज उसकी बनी है, इसी वजह से दाम बढ़े हैं. अब जब हम अगले सीजन में यहाँ पर जाएंगे तो किस तरह का रिपोर्ट कार्ड आप फिर यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? अगले सीजन में हमें देखना होगा कि क्रॉप कैसी आती है, एरिया कितना बढ़ता है, वेदर उस समय सितंबर से नवंबर के बीच में कैसा रहता है, और आगे फसल कैसी आती है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10-15% अगर पैदावार अगले साल बढ़ भी जाती है
तो उतनी डिमांड देश में शायद बढ़ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से सरसों के भाव बहुत नीचे आने वाले हैं? अगर एक प्राइस सेंस लेना हो यहाँ से कि भाव कहाँ जा सकते हैं सरसों के, तो क्या कहेंगे आप? अभी तो मुझे लगता है अभी 1-2 महीने बात करना चाहिए नाफेड और हाफेड किस तरीके से बेचते हैं, और बिहार चुनाव स्पेशली तब तक देखने के लिए। फिर उसके बाद सोइंग फिगर्स पे भी डिपेंड करेगा कैसी सोइंग होती है और कैसी क्रॉप मैच्योर होती है, उसके बाद में फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। लेकिन आप इतने सालों से यहाँ पर सरसों का काम कर रहे हैं विजय जी, अगर एक सेंस देनी हो कि भाव कैसे रह सकते हैं, क्या रेंज बन सकती है? देखिए, सरसों ने जो भाव देख लिए हैं इसमें अब घटने वाले नहीं है। बढ़ना कितना है ये समय बताएगा, देखिए। ठीक है विजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक सरसों की बात है, भाव नीचे नहीं आने वाले, ये बात तो विजय जी बहुत क्लियरली कह रहे हैं। यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे वो ऑफ कोर्स यहाँ पर अब हमें इसको देखना होगा। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर खाने के तेलों की। विजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने $39 पर आउंस के लेवल्स जो हैं वो होल्ड करते हुए देखे हैं। हमारे साथ अब रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि नमस्कार। $39 होल्ड कर रहा है। भारतीय बाजारों में हमने देखा है कि यहाँ पर चांदी के प्राइसेस नियर ऑल टाइम हाइस के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप यहाँ से लेवल्स? जड़ से जो हमारा दीपावली तक का टारगेट था 1,21,000, शायद लग रहा है कि वही तरफ सिल्वर के प्राइस जा रहे हैं। ऑल ओवर सिचुएशन एंड सिनेरियो थोड़ी स्टेबल है। मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट अभी धीरे धीरे हम 1 अगस्त की तरफ जाएंगे। थोड़ा टैरिफ को लेकर अनसर्टनिटी से थोड़ा मीन्स की डॉलर इंडेक्स के अनसर्टनिटी से, इस हिसाब से थोड़ा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट होगा। नेक्स्ट वीक फेड की पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी के ऊपर भी फोकस है। तब तक मुझे लग रहा है कि अब ब्रॉडर वे पे कमोडिटी मार्केट में कंसोलिडेशन का ही टाइम होगा। लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलता रहेगा। हायर लेवल पे 1,16,000 1,16,400 का एक रेजिस्टेंस पे है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी वाइज आपको बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है। 1,15,000 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगा 1,14,600 का। एंड मुझे लग रहा है कि 1,16,000 तक के टारगेट आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। अभी जो नया रैली और नया जो मोमेंट है, मुझे लग रहा है कि 1 अगस्त जैसे टैरिफ का मींस के क्लैरिफिकेशन आएगा या फेड की पॉलिसी खत्म होगी, उसके बाद ही मिलेगा। बट जिस हिसाब से कल भी यूएस प्रेसिडेंट एंड मींस के पोवेल की जो मीटिंग थी, इसमें थोड़े जेस्चर वाइज ऐसा लग रहा था कि अगर फेड रेट कट भी ना करे तो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टॉन है वो डविश हो सकता है। ये तो बात हुई चांदी की, जहां पर आप कह रहे हैं कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी कॉपर में क्या सेंस है? बिकॉज यहां पर जिस तरह से एलएमई और शंघाई में काम हो रहा है जो थोड़ा सा नीचे है, यूएस कॉपर ने ऑल टाइम हाई फिर से बनाया है, यहां पर क्या करने की राय देंगे? इसमें सिमिलर एल्यूमिनियम जैसा ही ट्रेंड बन रहा है। जब से एल्यूमिनियम स्टील पे टैरिफ लगे, एक साइडवेज एक कंसोलिडेशन का ही माहौल आपको ये कमोडिटीज में देखने को मिला है। सिमिलर वे में यहाँ भी जैसे 1 तारीख का डेडलाइन है, आई थिंक इतने बड़े टैरिफ लगने हैं, तो इसके पहले थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि अभी देखे तो लास्ट 10-12 दिन से वैसे कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं बढ़ा है, बट मुझे लग रहा है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन के नजदीक जाएंगे थोड़ा फिर से ये इश्यू आएगा। एंड प्राइसेस ऑल ओवर फर्म है। आई थिंक नेक्स्ट वीक चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा की एक्सपेक्टेशंस अभी थोड़ी पॉजिटिव है, तो लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेंस पॉजिटिव रखना चाहिए। एंड ऊपर 904 906 के करीब एक सप्लाई जोन है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 888 के करीब बाय करना है। 882 का स्टॉप लॉस होगा एंड ऊपर 903 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। तो रवि, अब यहां से आगे बढ़े और कच्चे तेल की बात करें तो आज आधे % की तेजी के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। एक स्टेबिलिटी हमने इस हफ्ते यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। इनिशियल गिरावट के बाद कुछ बाजार यहां पर संभले हैं। ऑफ कोर्स काफी सारी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, काफी सारे टैरिफ्स के ट्रेड्स हमने यहां पर अग्रीमेंट्स होते हुए देखे हैं, जिनका कुछ फायदा क्रॉस इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में है। क्या कच्चा तेल यहां से और खरीदारी देख सकता है? जब से ये जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा, पर्टिकुलर जो चाइना की डिमांड की रिकवरी की मार्केट उम्मीद कर रहा है। एज वेल एज देखे तो यूएस की सप्लाई कम हुई है, ये हफ्ते काफी सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम थे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ओपेक की वैसे भी डेट कंफर्म हो चुकी है। ये नहीं, इसके अगले वाले संडे ओपेक मिलने वाला है। तो जब भी ओपेक की डेट्स आती है उसके बाद करेक्शन थोड़ा खत्म होता है, और ऑल ओवर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे 5650 इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा एंड अपर साइड 5850 के लेवल आ सकते हैं। एंड इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रांड की ब्रॉडर रेंज है वो 68 से लेके 71, तो यही रेंज में रहेगा। आज अच्छी रैली आ चुकी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप पे बाय करना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 5740 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5700
एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि 5,840, 5,850 ये टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी चांदी में करनी है। जहां तक कॉपर की बात है, कुछ मुनाफा वसूली हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, एक रेंज बाउंड कारोबार रवि को लगता है यहां पर देखने को मिलेगा। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हमें दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।